معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت، پردہ میں رہنے والی ماں اور بہنیں، اور بالخصوص مولانا حاجی فیضان صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جدب الکرم بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محفل پاک آغاز ہونے کے بعد مسلسل نعتیہ شاعری اب بڑی خلوص و للہیت کے ساتھ روحانیت کی محفل میں، ایصال ثواب کی محفل میں تمام عقیدت مند عزیز و اقربا نے بڑی خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نعت نبی کا اشعار پیش کر رہے تھے، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ تمام سامعین سماعت کر رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے بعد بھی آپ کو حاجی مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ سے آپ کو نعتیہ شاعری اور بڑی روحانیت کو بیدار کرنے والے اشعار حضرت آپ کو سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں گے۔ تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا، تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا، اور بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا، بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا، ہر رند صدا دیتا ہے مخمور نشے میں، ہر رند صدا دیتا ہے مخمور نشے میں، ایسا کیے میں خانہ ذرا اور ذرا، اور تم دل سے کرو ان کی ثنا، تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا، اور بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا۔ آج جسیم صاحب موجود ہیں، شعر ملاحظہ فرمائیں گے۔ امداد میری کیجئے سرکار مدینہ، امداد میری کیجئے سرکار مدینہ، اب سہ نہیں پاؤں گا جفا گر کی جفا، اور اب سہ نہیں پاؤں گا جفا گر کی جفا، اور تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا، اور بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا۔ پی پی کے تیرے ہاتھوں سے کہتا ہے دیوانہ، پی پی کے تیرے ہاتھوں سے کہتا ہے دیوانہ، ایسا کہ مجھے جام محبت کا پلا،
تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا اور بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا بارگاہ رسالت میں نعت نبی سماعت کر رہے ہیں آخری شعر پڑھ رہا ہوں ایک بار دکھا کر تو جھلک جان تمنا ایک بار دکھا کر تو جھلک جان تمنا محفل میں جمع رنگ جمع اور جمع تم دل سے کرو ان کی ثنا اور ثنا اور بن مانگے وہ کرتے ہیں عطاؤں پہ عطا دیکھیے بارگاہ غریب نواز میں چل رہا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد معدن جد ولی کرم بارک وصلو علیہ السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا شان خواجہ خواجگاں تیرا شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا شان خواجہ خواجگاں تیرا شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشتے کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے آخری شعر پڑھ رہا ہوں ملادبت یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا شان خواجہ خواجگاں تیرا شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے
تجھے بے کسوں کا خیال ہے. درد پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد مادن جد والکرم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماہما محتاج تو حاجت روا، ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ. خذ یدی یا صاحب جینا خذ یدی، خذ یدی یا شاہ جینا خذ یدی، شیئن للہ انت نور احمدی. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ ایک اصالِ ثواب کی محفل میں تشریف فرما ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اصالِ ثواب کرتے ہیں، مگر اس اصالِ ثواب کو ہم اور آپ صرف رسم بنا کر کے اصالِ ثواب کر رہے ہیں. اگر کوئی اس اصالِ ثواب کے تعلق سے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کرنے سے کیا ہوگا، چادر چڑھانے سے کیا ہوگا، حشر میں یہی پوچھا جائے گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑا گستاخ ہے. وہ روحانی طاقت کے پیچھے نہیں چلنے والا ہے بلکہ تابوتی طاقت کے پیچھے چلنے والا ہے. اگر روحانی طاقت کے پیچھے چلنے والا ہوتا تو وہ کبھی ایسا خیال اور مجاز اپنوں کے درمیان نہیں بیان کرتا. وہ داڑھی منڈا ہے، اپنے آپ کو فاسق ہے، بے نمازی ہے، شراب پیتا ہوگا، برائی میں ملوث رہتا ہوگا. نہ جانے ہمارے بزرگان دین اور غوث اعظم کو کیا کیا کہہ جاتے ہیں. میرے دوستوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے سنیوں کے درمیان رہ کر کے ہمارے بن کر کے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے پر آمادہ رہا کرتے ہیں. میرے دوستوں، کہہ جاتے ہیں کہ یہاں جانے سے، چادر چڑھانے سے کیا مل جائے گا، حشر میں یہی پوچھا جائے گا. ارے یہاں چادر و مزار کی کیا بات ہے، تم تو پہلے ان کا بن جاؤ. جب تک تم ان کا بناؤ گے نہیں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. صرف نماز پڑھتے رہ جاؤ گے جیسے ابلیس پڑھتا رہ گیا تھا، اور 6000 کروڑ برس کی عبادت ایک پل میں ختم ہو گیا. میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ کو غوث اعظم سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، ہم لوگوں کو غریب نواز سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ ہماری اور آپ کی تمام لوگ تابوتی طاقت کے پیچھے چلنے والے روس و امریکہ، جاپان اور تمام ممالک اسلامیہ کے مخالفین جو ہیں وہ سب کے سب تابوتی طاقت کے پیچھے چلنے لگے. مسجد اقصی میں حقیر سلیمانی کھوجا جا رہا ہے، حضرت تابوت سکینہ کھوجا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں تمام دنیا میں پاورفل بن جاؤں اور طاقتور بن جاؤں. ارے مجھے طاقتور اس چیز کا طاقتور نہیں بننا ہے، مجھے طاقتور بننا ہے تو غوث اعظم کا غلام بن کر کے طاقتور بننا ہے، رسول اعظم کا غلام بن کر کے طاقتور بننا ہے. ورنہ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی اور یہ روحانی طاقت دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت. لہذا مجاز بدلیے. مخالفین آج ہماری اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رسول اعظم کا زمانہ تھا، میرے آقا کے زمانے میں، اس زمانے میں ایسا ہوا کہ اس زمانے میں مخالفین نے بڑی مخالفت کیا میرے آقا کی. اور اس زمانے میں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بت جو ہے بولنا شروع کر دیا. کفار مکہ میں بڑا خوشی ہوا کہ یہاں کا مورتی بولنا شروع کر دیا ہے، یہاں کا بت بولنا شروع کر دیا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں کا مورتی بولنا شروع کر دیا ہے، اس کا بت بولنے لگا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں جب آ کر کہنا شروع کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ کیا بول رہا ہے؟ تو میرے آقا کی بارگاہ میں کہنے والا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صرف اور صرف وہ آپ کی توہین کر رہا ہے، وہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، وہ آپ کی تمام تر گستاخیوں کا حد پار کر دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ چلتے ہیں، ذرا میں بھی چل کر کے اسے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ بت، وہ مورتی کیسے میری مخالفت کر رہا ہے. جب میرے آقا نے ارادہ فرمایا اور جاتے ہیں اس بت قدم میں، جیسے ہی پہنچتے ہیں میرے آقا جیسے ہی قدم رکھتے ہیں پوچھا کہ کیا بول رہا تھا یہ مورتی، کیا بول رہا تھا؟ اب وہ مورتی بول نہیں رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے مکہ کے سرداروں کیا یہی کر رہا تھا، خاموش رہ رہا تھا اور تو میرے
दरमियान आकर के कह रहे थे कि वो मूर्ति आपके खिलाफ बक रहा है, अनाप शनाप। मेरे आका की बारगाह में लोगों ने कहा नहीं, ये तो आपके मुकम्मल बुराई बयान कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया तब क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे आका फरमाते हैं ऐ मूर्ति, ऐ बुतकंदा, अरे तू क्यों नहीं बोल रहा है? जो कल तू बोल रहा था, 1 घंटे पहले बोल रहा था या आधा घंटे पहले बोल रहा था, अब क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे आका की बारगाह में मेरे आका फरमाते हैं ऐ मूर्ति, जो तू बोल रहा था क्यों नहीं बोल रहा है? जैसे ही मेरे आका बोलते हैं जो तू बोल रहा था क्यों नहीं बोल रहा है, मेरे आका की बारगाह में उस मूर्ति के अंदर से आवाज आने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मक्का के सरदारों, क्या यही बोल रहा था? क्या यही बोल रहा था? तो मक्का के सरदारों ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा था, ये तो आपने देखा वो ऐसा बोलना शुरू कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं तब क्या कह रहा था? वो आपकी मुकम्मल बुराई बयान कर रहा था। मेरे आका ने कहा कि छोड़ो, इन सारी ताबूती ताकत के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें रूहानी ताकत के पीछे चलने की जरूरत है। मेरे आका चलने लगे और जब गुजर गए, बुतकदे से निकल गए, तो एक जिन्नात आता है, उसके तलवार में खून लगे हुए थे, दौड़ते हुए आता है मेरे आका की बारगाह में, आकर के कहने लगा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बोलिए क्या बात है, आपके तलवार में खून कैसे लगे हुए हैं? या नबी अल्लाह, आप जो बुतकदे में गए थे, उस मूर्ति के अंदर, उस बुत के अंदर एक खबीस जिन्नात जो है, एक काफिर जिन्नात जो है, बैठ करके आपकी गुस्ताखी कर रहा था, आपके बारे में बुराई बयान कर रहा था। या नबी अल्लाह, जब मैंने सुना कि आप वहां जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे पहले पहुंचा और काफिर जिन्नात को पकड़ करके मैं उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब आपने कहा यही बोल रहा था, क्या खामोश रह रहा था? ऐ मूर्ति, तू क्यों नहीं बोल रहा है? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मैंने कहा और आपकी गुलामी में दाखिल होने का शर्फ हासिल किया। या नबी अल्लाह, ये दुनिया मुखालफत है कर रही है आपकी, वरना आने वाली वक्त ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया के लोगों को आपका कलमा पढ़ना पड़ेगा। और यकीनन आप अपने माथों की नजर से देख रहे हैं जो मेरे नबी की मुखालफत जितने लोगों ने किया, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाहे दुनिया की कोई ताकतवर ताबूती ताकत कुव्वत हो, मेरे नबी का जिन जिन लोगों ने मुखालफत किया, उसका मुखालफत जो करना हमारा काम नहीं है, बल्कि काम कर करके दिखाना काम है। हमारा आपको चाहिए कि नमाज पंजगाना पढ़े, हमारा आपको चाहिए अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करे, गौसे आजम के गुलाम से हाथ पर हाथ दे करके मुरीद हो जाए। जब तक मुरीद होइएगा नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हजरत मौलाना जसीम साहब किबला जो हैं अपने वालिद के फातिहा करा रहे हैं, और ये मुरीद हैं तो किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि हुजूर ताजु शरिया वक्त के बड़े कुतुब, वक्त के मौलाना फैजान साहब किबला हमारे ताजु शरिया वक्त के कुतुब और गौस से मुरीद हैं। मेरे दोस्तों, ये जान लीजिए बड़े बड़े अकाबिरीन जो हैं उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। वो हुजूर ताजु शरिया जब पाकिस्तान के सरजमी पर जाते हैं तो हजरत सैयद साहब के बारे में पता चला कि हजरत हमारे जो हैं ताजु शरिया आए हुए हैं, और उनको पता चला कि सैयद साहब किसी से मिलते हैं तो आधा घंटा मिलने के टाइम लिया करते हैं। तो उन्होंने हुजूर ताजु शरिया ने कहा कि औलाद गौसे आजम है, मैं चलता हूं उनसे मिलने के लिए। जब उनकी बारगाह में जाते हैं, खादिम को बताया, ऐ खादिम सुनो इधर आओ, मैं हिंदुस्तान से आया हूं और मुझे साहब सज्जादा से मुलाकात करनी है, जाकर के कह दो कि अजहरी मियाँ हिंदुस्तान से चल करके अख्तर रजा खां आए हुए हैं। जैसे ही वो जाकर के खादिम ने कहा कि हिंदुस्तान से चलकर बरेली शरीफ से चलकर हिंदुस्तान से चलकर बरेली शरीफ से चलकर हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी साहब आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर जाते तो उनसे उनको मिलना होता तो 1 घंटा उन्हें तैयार होने में टाइम लगता था, मगर हुजूर ताजु शरिया इनके पीर मुर्शिद हजरत के पीर मुर्शिद जब वहां जाते हैं तो हजरत सैयद साहब किबला तैयार नहीं होते हैं, बल्कि दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं हुजूर मेरे तख्त पर बैठिए। हुजूर साहब सज्जादा दौड़
दौड़ते हुए आते हैं, ताजु शरिया को लेकर के जाते हैं और जाकर करके अपने तख्त पर अपने ताजु शरिया को बैठा कर करके कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे ताजु शरिया की बारगाह में कहते हैं, ऐ मेरे ताजु शरिया अख्तर रज़ा साहब किबला, अरे ये तख्त जो है आपके नाना का अता करता है और मेरे नाना ने आपके नाना को वो नेमत अता कर दिया है कि ता कयामत वो नेमत को बांटते रहिए हो सकता है। लिहाजा मुसलमानों, ये है रूहानियत कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान बरेली शरीफ के तरफ रुख कर रहा है और हिंदुस्तान के तरफ रुख कर रहा है, और वो भी इनके पीरो मुर्शिद ताजु शरिया के शहजादे हुजूर अशरफ रज़ा साहब किबला अभी वक्त के कुतुब बन कर करके पूरे दुनिया में गश्त कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों, आज हमें और आपको चाहिए कि दुनियावी ताकत के पीछे नहीं, ताबूती ताकत के पीछे नहीं, हैकर सुलेमानी नहीं, बल्कि गौसे आदम की रूहानियत चाहिए, ताजु शरिया की रूहानियत चाहिए, हमारे पीरो मुर्शिद की रूहानियत चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं दुआ कर रहा हूँ मुसलमानों, ये जान लीजिए मौत सबको आनी है, सब लोग मुक्त मुतय्यना पर चले जाएंगे। कलाम मजीद की एक तफसीर बयान करता हूँ, अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 70 की तफसीर है। हजरत जब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, हालात कैसे थे मुसलमानों, गौर करने की जरूरत है कि हम और आप मुसलमान हैं, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं करते हैं, अपने उलमा से मोहब्बत नहीं करते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत नहीं करते हैं, अपने अकाबरीन से दूरी बनाए हुए हैं। ऐ मुसलमानों, अरे दौलत तुम्हारा यही रह जाएगा, अगर मकाम आएगा तो तुम्हारे मुर्शिद की मोहब्बत काम आएगा, गौसे आज़म की मोहब्बत काम आएगा। सुन लीजिए, अगर मोहब्बत नहीं करते हैं तो सुन लीजिए, और मोहब्बत करते होंगे तो आप इसके ताबे होंगे, और नहीं मोहब्बत कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह करने की जरूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आमिर नामी शख्स दौलतमंद था, उसका कत्ल हो जाता है। बनी इसराइल के लोगों ने आकर के मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये बताइए कि आमिर नामी शख्स का किसने कत्ल कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा करो कि उसके कत्ल से पहले मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट बता दूंगा, अगर किसी को यकीन होगा किसी को यकीन नहीं होगा। लिहाजा ऐसा करो कि एक जानवर को ज़बह करो, उसके गोश्त से उसके जिस्म पर मारो, और जब बच्चा जिंदा हो जाएगा तो खुद बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया है। मगर बनी इसराइल के लोगों ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ उस बच्चे का कत्ल हुआ है और कहाँ एक जानवर ज़बह करने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं करो। जैसे कि आज हमारे इमाम किराम मस्जिद में कहते हैं कि तुम्हें इतना उशरा निकालना है, तो उशरा के पीछे ध्यान नहीं है, दौलत के पीछे ध्यान है, ज़कात के पीछे ध्यान नहीं है, अपने दौलत के पीछे ध्यान है। अगर सुन लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम जब कहते हैं तो बनी इसराइल के लोगों ने मजाक बनाया, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात माने कि जमाने में हमारी इतनी इज्जत है, हमारे जमाने में इतनी मकबूलियत है, मैं अपनी मकबूलियत और जमाने में मेरा शोहरत है कि बड़ा रईस है, बड़ा मर्तबे वाला है, और मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानूं। लिहाजा इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया। तो क्या हुआ कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते बनाते उन लोगों में हुआ ये कि अरे आखिर हम लोगों का फैसला कौन करेगा, हमारे दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा दूसरा कोई नहीं फैसला कर सकता है। लोग फिर आते हैं, अर्ज करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ये बताइए कि कौन से जानवर को ज़बह करो, दूध देने वाले के हल जोतने वाले के बुढ़िया को के दरमियानी को, किस उम्र का करो। हजरत ने फरमाया दरमियानी का करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो नबी अल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे। लोगों ने उनकी बात सुनने के बाद फिर हटते हैं, मजाक बनाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा इस मंजर को, लोग मजाक बना रहे हैं। फिर आया, लोगों ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम जाइए अल्लाह से बात करके आइए, अल्लाह से पूछ करके आइए कि अब वो जानवर ज़बह करूं तो कौन सा करूं, पीले कलर का करूं, लाल कलर का करूं, उजले कलर का करूं, या नीले कलर का करूं, या काले करूं, या सफेद करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ तुम्हें पीले कलर का जानवर मिल जाता है उसे ज़बह कर देना। पर उन लोग हटते हैं, कहते हैं। फिर मजाक बनाया, पूछा, मजाक बनाने के बाद फिर आया, पूछा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये बताइए कि कहाँ मिलेगा। उस जमाने में एक शख्स था, बड़ा
मर्ज में मुब्तला था, वो बीमारी में मुब्तला था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। अचानक उसने पूछा कि उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐसा करो कि मेरा एक नन्हा बच्चा है, अब करीब है कि मेरा मौत वक्त के करीब है, मेरा रूह कब से उसी से परवास कर जाएगा, लिहाजा मेरे पास एक बच्चिया है जो पीले कलर की है, उसको जो है अल्लाह का नाम का मोहर मार देता हूँ और जंगल में चरने के लिए छोड़ देता हूँ, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा उसे जाकर के कहिएगा कि उस बच्चे को आवाज देगा, वो बच्चिया दौड़ते हुए आ जाएगी और फिर उसे बाजार में बेच देगा, और बाजार में बेच देगा तो उसे कीमत मिल जाएगा, उसके पास कुछ रुपए पैसे दौलत हो जाएंगे, उससे वो तिजारत करेगा, कारोबार हो जाएंगे चालू उसके। वो बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसकी वालिदा ने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद का जब मौत का वक्त करीब था उस वक्त उन्होंने एक बच्चे को, पीले कलर के बच्चे को अल्लाह का नाम का मोहर मार कर करके जंगल में चरने के लिए छोड़ा है, जब उसे आवाज देना और जैसी आवाज दोगे वो बच्चे दौड़ते हुए आ जाएगी और उसे लेकर के मेरे पास आना, मैं पहचान लूंगी कि कौन बच्चिया है। जब बच्चा जाता है आवाज देता है, ऐ मेरे बच्चिया, तुम मेरे अब्बा हुजूर ने जंगल में चरने के लिए छोड़ा था, तुम कहाँ हो, वापस आओ। जैसी आवाज दिया बच्चे दौड़ते हुए आती है और जैसी आती है उसे लेकर के अपने घर जाता है बेटा, और जाने के बाद अपनी वालिदा से पूछा, ऐ मेरी वालिदा यही बच्चिया है? कहा हाँ यही बच्चिया है, ले जाओ बाजार में इसे बेच डालो। कहा कितने में बेचूंगा? कहा कि ले जाइए इसे 3 दिरहम में बेच दीजिएगा। ले जाते हैं बेटा बाजार में बेचने के लिए, और जैसे ही बाजार में जाते हैं बेचने के लिए फरिश्ते खरीदार आ जाते हैं। आने के बाद कहा, ऐ बेटा क्या कीमत है? अर्ज किया कि इसका कीमत 3 दिरहम है। कहा कि 3 दिरहम है? कहा कि नहीं 3 दिरहम नहीं देंगे। कहा कितना दीजिएगा? जाइए। कहा कि कितना दीजिएगा? कहा कि 6 दिरहम देंगे। कहा कि नहीं मैं 6 दिरहम नहीं लूंगा, मैं लेने से पहले जब तक माँ से नहीं पूछ लूंगा, जब तक माँ से नहीं पूछ लूंगा तब तक मैं आपको 6 दिरहम में नहीं दूंगा। कहा फरिश्तों ने, फैसला आप ही को करना है, फैसला आप ही को करना है। बच्चा जाता है माँ से पूछने के लिए, जैसे माँ से पूछने गया, माँ ने कहा क्या हुआ? कहा कि 6 दिरहम दे रहे हैं, मैं 3 दिरहम बोल रहा हूँ तो 6 दिरहम दे रहे हैं, बढ़ा करके दे रहे हैं। कहा कि लगता है जाइए उसे 6 दिरहम में दे दीजिएगा। वो आते हैं बाजार में, फरिश्तों ने पूछा क्या हुआ? कहा कि 6 दिरहम में ले जाइए। कहा नहीं अब 6 दिरहम में नहीं ले जाएंगे। कहा कि कितने में ले जाइएगा? कहा कि अब जो है 12 दिरहम में ले जाएंगे। कहा कि 12 दिरहम? कहा कि हाँ, मैं तब तक माँ से नहीं पूछूंगा तब तक नहीं दूंगा। बेटा फिर जाता है माँ के पास पूछने के लिए, जैसे ही माँ के पास पूछने जाता है, माँ ने जैसे पूछा, ऐ मेरी माँ अब वो 6 दिरहम में नहीं ले रहे हैं, अब 12 दिरहम में लेंगे। कहा कि लगता है कि कोई फरिश्ता खरीदार आ गया है, उनसे जाकर के कहिएगा ऐसे बेचने नहीं देना है क्या? कहा कि बेचना है। बेटा जाता है बाजार में, जाता है पूछता फरिश्तों ने क्या हुआ? कहा कि क्या इसे बेचने नहीं देना है क्या? कहा कि बेचना है मगर इसका कीमत मैं तय करूंगा। कहा कि क्या कीमत होगी? कहा कि कीमत ये होगी कि जब बनी इस्राइल के लोग आपके घर पर आएंगे इसे खरीदने के लिए, अभी आप इसे घर ले जाइए, और जब बनी इस्राइल के लोग खरीदने जब आपके यहाँ आएंगे तो इसका कीमत मैं बता रहा हूँ कि क्या होगी। कहा कि बताइए कि क्या होगी? कहा कि बेचना है। बनी इस्राइल के लोग जब आएंगे आपके घर पर तो आपको कहना यह है कि इसमें इसके खाल को जब छीले जाएंगे, इसे ज़बह किए जाएंगे, खाल को छीले जाएंगे, इसमें जो है इसका कीमत ये है कि इसके खाल में सोना भर करके मुझे वापस किए जाएं, और फिर जो है तब मैं इसे दूंगा। तो बनी इस्राइल के लोग जैसे ही पहुंचते हैं, बच्चा वापस लेके जानवर घर जाता है, बनी इस्राइल के लोग वापस आते हैं इनके यहाँ खरीदने के लिए। जैसे आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ में मौजूद थे। आते हैं, पूछा कि क्या कीमत है? कहा इसकी कीमत ये है कि जब इसे ज़बह किए जाएं, इसके जानवर को चमड़े को छीले जाएं, तो इसके चमड़े में सोना भर करके मुझे वापस लौटाए जाएं, इसकी कीमत ये है। तो बनी इस्राइल के लोग ने कहा ये मैं कीमत कहाँ से अदा कर सकूंगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जमानत में उसे ले लिया, खरीद लिया, और कहा चलो इसमें सोना भर करके तुम्हें वापस लौटाएंगे। और खरीद कर करके जाते हैं। जब उसे ज़बह किया गया, उसके गोश्त नामी शख्स को मारा गया, और जब मारा गया तो वो जिंदा हो जाता है। पूछा जाता है तुम्हें किसने कत्ल किया? तो कहा कि मुझे फलाना शख्स ने कत्ल किया। अरे चाहते मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बता
बनाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था जाओ जानवर ज़बह करो, उसमें कोई भी जानवर को ज़बह कर देते तो काफी हो जाता, मगर उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से बदतमीजी किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के मजाक बनाया था, मूसा अलैहिस्सलाम के लोग मस्खरे बनाए थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल को गिरफ्त में लेता चला गया और इतना गिरफ्त में ले गया कि फिर उतना यतीम बच्चा को 1 रुपए की हाजत थी, 1 रुपए की तलाश थी, 3 दिरहम की तलाश थी, 3 दिरहम से अलावा उसे 12 दिरहम तक पहुंच गए, मगर फरिश्तों ने कहा कि इसमें सोना भर करके मांगेगा इसमें कीमत मिलेगा। तो रब्बे दुल जलाल ने वो बच्चा माँ का वसीला तर्क नहीं किया, तो रब्बे दुल जलाल ने अगर वो बच्चा माँ का वसीला तर्क कर देता तो फिर वो जहाँ था वहीं के रह जाता, वहीं का वहीं रह जाता। लिहाजा वो बच्चा माँ का वसीला तर्क नहीं किया तो रब्बे दुल जलाल ने उसे मालदार बना दिया, उसके खाल में सोना भर करके वापस किया गया। लिहाजा मुसलमानों तुम अपने माँ बाप का वसीला तर्क न करो, गौसे आजम का वसीला तर्क न करो, गरीब नवाज का वसीला तर्क न करो, अपने मुर्शिद से राब्ता कायम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इतना मालदार बना देगा कि तुम अपने आप को अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लिहाजा आज हम और आप इसाले सवाब की महफिल में आए हैं, ये अजमत वाली बयान के सदके में दुआ कर रहा हूँ कि हजरत मौलाना जसीम साहब के वालिद मोहतरम शरफुद्दीन साहब, उनके वालिदा और उनके जुमला मरहूमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाए और हम सारे लोगों को गुनाहों को माफ फरमाए, हम लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बना दे। और ये याद रखिएगा कि जिंदगी में नमाज को हल्के में मत लीजिएगा, अगर कामयाब होना है तो नमाजी बन जाइए, अपने भाई से मोहब्बत कीजिए, अपने भाई को भाई समझिए। देखिए रूहानी ताकत वो ताकत भी थी कि बदर के मैदान में 313 मुसलमान थे, अक्सर ये कुफार थे, तो क्या फतह हासिल हुई थी कि नहीं हुई थी, कामयाबी में हासिल हुए थे कि नहीं हुए थे। कामयाब होना है तो रूहानियत के पीछे जाइए, दुनिया के पीछे न जाइए। अगर कोई आपको अरबों रुपए दे तो सुन लीजिए और ये कहे कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे, गौसे आदम की मजाक बनाए, गरीब नवाज का मजाक उड़ावे, तो उस वक्त ये जान लीजिए कि वो शैतान आपको अरबों खरबों रुपए दे कर करके आपको खरीद रहा है, आपकी रूहानियत को खरीद रहा है। लिहाजा आप पावरफुल हैं, इतने बड़े अजमत वाले नबी को मानने वाले हैं जिसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अब और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुश्किलातें बेअदद दारैन माँ, मुश्किलातें बेअदद दारैन माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि रब्बे कदीर मौलाना जसीम साहब और उनके भाइयों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए और गौसे आज़म का फैज़ान बिलखुसूस मुझ पर और तमाम भाइयों पर नाज़िल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। दौरान खिताब किसी तरह की गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ हुई होंगी या नबी अल्लाह के मेरे परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके तुफैल मेरी खताओं को माफ़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।